I think the screen is visible to you. So you can just check it out. I'm going to introduce the basic idea about the limits of exponential and logarithmic functions. Now the basic idea of what exactly are the logarithmic and exponential functions. Though no one is going to ask you that in your board examination or even in grade 11th also. You just need basic formulas and how to apply them. But let me just briefly talk about what exactly is an exponential function. तो आपके पास let a be a real number such that a is greater than 1. Then the function of the following form fx is equal to a power x is said to be an exponential function. Right. क्या इसका मतलब हो गया? जैसे मान लीजिए मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. Let's say the fx is 2 raised to the power x, right? तो 2 power x. अब इसके जब मैं ग्राफ की बात करूंगा, I need some table to plot it. So let's say there is a graph and I choose certain values given to x. So x and fx. So when x is 0, clearly 2 power 0 is 1. When x is 1, 2 power 1, 1. When x is minus 1, because x can be even negative as well. When x is minus 1, 2 power minus 1 is half, which is 0.5. Say when x is 2, it will be 4. When x is 3, it will be 8 and so on. So as we say, there is an exponential growth which can be observed. And when I graph this function, the when x is 0, मैं लिख नहीं रहा वो सिंपली when x is 0, आंसर is 1. तो 0, 1. फिर 1, 1. When x is 1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया. When x is 1, तो it should be 2. When x is 1, it is 2. When x is minus 1, it is 0.5. 0.5 कहीं यहां आ जाएगा, right? And when it is 2, 2 के ऊपर आंसर 4 है, and then 3 के ऊपर 8 है, something like this. When I join all these points together, I will get a graph like this. प्रॉपर अगर बताऊं तो वो स्मूथ कर्व कोई ऐसा सा बनकर आ जाता है. So that is the graph of your sum exponential function whose domain is R and the range is positive real values. It can never be zero. आपके सामने ही है, ग्राफ से पता ही चल रहा है. Domain is R, real values. X can be positive, X can be negative. But आंसर जो है इसका वो हमेशा रियल पॉजिटिव होगा. रियल पॉजिटिव का मतलब क्या हो जाता है? 0 to infinity. 0 is exclusive of that. So I'm sure when you did relations and functions, then you were introduced with the domain and range of certain functions and their graphs. So ये तो इसका बेसिक ग्राफ आपका हो जाता है. इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर. अगर a की वैल्यू e हो जाती है, e is a very important number in mathematics. As if I talk about pi, तो पाई हम कहते हैं ना कि वेरी इंपॉर्टेंट नंबर हो रहा है, विच इज अ irrational number whose decimal expansion is non-terminating and non-repeating. This is a transcendental number. So there are lot many properties for the pi. Similarly, another number for reference is actually e, which is known as the Napier's base. John Napier was a mathematician who devised the logarithmic table, and the 4-page table took him 25 years. And he worked day and night to get those 4 pages table. And that was in 17th century when the another physicist
कैपलर, आई थिंक फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा अबाउट द कैपलर्स लॉ. सो Kepler was working on his certain models of finding the distance between the moon and the earth, the distance between the various stars and the planets. So he was stuck at the some or the other point, and he could not, because there were the sophisticated calculations which are involved. And by God grace, it happened in some different country that John Napier at the same time came up with his four pages logrammatic table, और उसकी हेल्प से सारी कैलकुलेशन आसान हो गई. आज के टाइम में तो वी आर इन 21st सेंचुरी, वी हैव द कैलकुलेटर सॉफ्टवेयर्स एंड सो ऑन. सो बहुत इजीली वो हम पता कर सकते हैं. बट उस टाइम में मैं बात कर रहा हूँ, आज से तकरीबन 400 350 400 साल पहले, ऑफ कोर्स कुछ ऐसा नहीं था. तो उस समय लॉगरिथम्स आया था और उसकी हेल्प से सिचुएशन बहुत सिंप्लीफाइड हुई थी. वहां एक आपका ये नेपियर बेस आता है. तो उसी से हमारा ई पावर एक्स का ग्राफ होता है. ऐसे ही हम बात करते हैं अबाउट द लॉगरिथमिक फंक्शन. अब लॉग फंक्शन देखो क्या हो जाता है, उसे समझने के लिए आई विल टेक अ सिंपल एग्जांपल. आई नो 2 की पावर 4 is 16. This is the exponential form. Up, this is equivalent to say that log of 16 to the base 2 is equal to 4. I am not interested in say powers. मेरा टास्क है जी, पावर्स अजीब सी लग रही हैं, इनको रिमूव कैसे करूं. तो पावर रिमूव का मतलब आप एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया. जैसे आपने साइन, कोसाइन, टेंजेंट फंक्शंस को स्टडी करा है, इसी तरह से लॉगरिथमिक एज अ नया नाम दिया गया. तो दिस इज जस्ट अ नोटेशन फॉर दैट फंक्शन. और एक और एग्जांपल चलो ले लेता हूं. मान लीजिए 3 पावर में बात करता हूं 2 की. सिंपल केस लेते हैं, 9 होता है. दिस इज इक्विवेलेंट टू से log of 9 to the base 3 is equal to 2. एक और एग्जांपल लेता हूं. अब नेगेटिव पावर का देख लेते हैं. 4 की पावर -3, दिस इज 1 अपॉन 64. ठीक है, 1 अपॉन 4 क्यूब हो गया ना. सो दिस इज 1 अपॉन 64. और अगर पावर रिमूव करनी है तो मैं कह सकता हूं log of 1 upon 64 to the base 4 is equal to -3. I am applying this basic definition and the relationship between the exponential and logarithmic function. In 12th, you will be studying about the inverse of a function. तो log and आपका जो ये आया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दे बोथ आर द इनवर्स फंक्शन टू ईच अदर. अगर बेस में यहाँ 10 ले लेता हूं तो वो तो कॉमन लॉगरिथम्स बोला जाता है. और अगर बेस ई होता है, इट इज अ नेचुरल लॉगरिथम्स. एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट बी ऑब्जर्व्ड एंड यूजिंग दिस इन फिजिक्स. अगर अभी इंट्रोड्यूस हो चुका है और मे बी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 12th में, तो ये केमिस्ट्री में भी, या पीएच वैल्यू आई डोंट नो आप कब निकालना सीखते हैं, तो वहां ये सब चीजें उनकी केमिस्ट्री में एप्लीकेशंस आप स्टडी करने वाले हैं. Then comes the certain properties of the logarithm, certain formulas which you can easily note over here. Log of xy product में अगर है, this becomes log of x plus log of y. If it is a division, log of x upon y, log x minus log y. If it is the power for this x, log x की पावर n अगर है, ये n जंप करके पहले आ जाता है लाइक दिस. सो दैट विल बिकम n टाइम्स log x. दिस इज अ रेसिप्रोकल रूल. log x टू द बेस a कह रहे हैं, दिस इज सेम एज 1 अपॉन, उल्टा कर दो a और x को इंटरचेंज कर दीजिए.
log x to the base x is always equal to 1. Log 1 is 0. Log 10 is 1. Log 100 is 2. Log 1000 is 3. तो याद रखिए इस समय में हर एक केस में बेस जो है वो 10 एज्यूम किया है. इफ नथिंग इज रिटन, लेट मी एज्यूम इट एज 10. ये तो एक बेसिक आइडिया हो गया जो 12th में भी आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं. बट नाउ स्पेसिफिक जो आपकी 11th की रिक्वायरमेंट है, अब मैं उस कॉन्सेप्ट पे आता हूं अबाउट दी लिमिट्स. तो लिमिट्स के केस में there will be only 3 formulas which you require. तो अब देखिए मैंने आपको जो पीछे तक बताया, फ्रेंकली अगर आपको वो नहीं भी समझ आया या ज्यादा नहीं पता है, यू कैन लीव दैट. रीजन, क्योंकि लिमिट्स का जो हमें क्वेश्चन सिलेबस के अकॉर्डिंगली लेने हैं, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, दैट्स इट. तो क्या एक आपको रिजल्ट की तरह बताया है, लिमिट x to 0 e power x minus 1 over x, this is equal to 1. So that is my base formula to understand. Let me quickly take one question based on it. Let's say the question is limit x to 0 e power 4x minus 1 upon x. So how I am going to attempt this question? पावर आपने नोटिस करा होगा जो यहां है वो यहां है, दे शुड बी द सेम. इसका मतलब मुझे क्या करना रहेगा फॉर्मूला बनाने के लिए, यहां 4x है ना, तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे x को. बट अगर 4 से मल्टीप्लाई करा है, डिवाइड भी टाइप करना पड़ेगा, तो 4 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दिया. ऑल्सो एक कॉमन सेंस की बात है, अगर x is approaching to 0, don't you think so 4x will also approach to 0? इसका मतलब यहां अगर x approach to 0 था, I can write कि 4x is also approaching to 0. Now look at this bracket. It resembles with the formula. एग्जैक्ट उसी नोटेशन और फॉर्म में ले आया हूं. तो द ब्रैकेट के अंदर जो चीज लिखी है बाय फार्मूला, इट विल बी सिंपली 1, और ये बाहर 4 था. यू आर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ दिस लिमिट. इनफैक्ट देयर इज अनदर रूल जिसे हम एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. वो आईआईटी वगैरह में उसको मेन यूज करते हैं, तो उससे तो इसका आंसर विद इन 2 सेकेंड 3 सेकेंड्स में बता सकता हूँ. बट दैट एल हॉस्पिटल रूल रिक्वायर द डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट, और सिलेबस में वैसे भी नहीं लिया जाता है. कैन एनीवन आंसर टू दिस क्वेश्चन? अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा या आप बताइए. यू कैन ऑलवेज अनम्यूट योर ऑडियो और यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन. एनीवन? आई एम वेटिंग. ओके, नो वन. थिंक लॉजिकली. -2 अब पावर ऊपर दे दिया है यहां इसके साथ -2. तो मैं क्या करने वाला हूं,
-2 से मल्टीप्लाई, मतलब एक तरह से कोई से डिवाइड और मल्टीप्लाई। एंड फिर कॉमन सेंस वाली चीज, अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है, -2x विल ऑल्सो अप्रोच टू 0। तो यहां मैं -2x लिख दूंगा। And I have a simple observation that inside this bracket, it is now resembling with your formula. So that this will become 1 और बाहर आ चुका था -2, your required answer. नेक्स्ट फॉर्मूला, ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ रहा है। इन केस अगर ई की जगह यहां ए हो जाए, ये याद रखिए, जब भी फॉर्मूला में ई लिखा हुआ है, इट इज रेफरिंग टू एक्सपोनेंशियल बेस, और वैसे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो होती है वो 2.7 के इक्वल अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं, जबकि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का इरेशनल नंबर होता है। तो देयर इज अ बुक, जैसे पाई के ऊपर रिसर्च वर्क है, देयर आर दी थिक बुक्स ओनली ऑन पाई, there are the books on the number E as well, because it finds its applications in the architecture and in the nature as well. But ठीक है, that is not required as a part of our syllabus. I'll not talk about that. तो अगर अब यहां बेस ए हो जाए तो आंसर होता है log ए। यहां बेस ई होता है, ये इन्होंने लिखा नहीं यहां पर, बट अगर आप पेपर में भी नहीं लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। जस्ट फॉर नॉलेज बताया है कि यहां बेस 10 नहीं होता, ई होता है। लेट मी टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू बिगिन। से मैंने क्वेश्चन दे दिया 3 की पावर x -1 अपॉन x, व्हाट इज द आंसर? एनीवन? दिस इज इक्वल टू, लुक एट द फॉर्मूला, जो बेस ए है बस उसी का लॉग लग गया, log 3। बेस में मैं ई लिखना प्रेफर करूंगा। इसी तरह से मान लीजिए लिमिट x टू 0 5 power x -1 by x, clearly that would be log of 5. This is simple formula with its simple application, and this is the only third formula जो आपके सिलेबस में है। लिमिट x to 0 log of 1 plus x upon x, log of 1 plus x। यहां ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 1 प्लस में ही होना चाहिए, और अगर यहां x है तो नीचे भी x होना चाहिए, एंड दिस इज इक्वल टू 1। I'm not going into the proofs of these formulas, though it is not difficult as far as the proofs are concerned, but they are again not a part of your syllabus. एक simple example से I would prefer to begin. Say log of 1 plus 3x by x. What is this answer?
अब फॉर्मेलिटी के लिए ज्वाइन करा है तो आपकी अटेंडेंस कहीं नहीं जा रही है, यू कैन लीव द क्लास, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, राइट? बट इफ यू आर हियर सो प्लीज स्टडी, गिव रिस्पॉन्स, टेक इट आउट। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या नोट करना था? जो लॉग के अंदर यहाँ x है, मेरे पास 3x है। अब मैं लॉग के अंदर वाली टर्म को तो नहीं हिला सकता, बट जो नीचे x लिखा हुआ है, मैं इस x को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये ऐसे करना रहेगा। और फिर वही चीज कि अगर x इज अप्रोचिंग टू 0, 3x will also approach to 0, तो यहां 3x will also approach to 0, so that अब अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखें, इट इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला विच इज 1। नोट केयरफुली, बिल्कुल वही टर्म्स आ गई, 3x, 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 तीनों ये चीजें मैच करनी चाहिए, ये तीनों। तो ये अगर तीनों चीजें मैच कर गई, ये x, x और एक ये वाला x, इफ दे मैचेस, दिस इज सिंपली 1, और बाहर था इनटू 3, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आई एम श्योर इस क्वेश्चन का आंसर अब इजीली बता पाएंगे आप। सिंपली लुकिंग एट दिस 5, 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड रहा होगा, and 5x is approach to 0. So this would become a direct formula as 1 and your required answer. Yes, perfect. ठीक है पायल, आपका आंसर। तो आई एम श्योर अब इसका आंसर तो डायरेक्ट है, देखते ही पता है इसका आंसर क्या रहेगा। सो फॉर्मूलाज बस अब आपके माइंड में होने चाहिए। जस्ट फॉर योर रेफरेंस मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, ये वाला यूज होना है। आइडेंटिफाई और सोचिए क्या करेंगे। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, अभी करा है हमने सिमिलर क्वेश्चन, ये 3x है ऊपर पावर, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3x विल अप्रोच टू 0, ये आ गया सिंपली इक्वल टू 1 एंड योर रिक्वायर्ड आंसर। अब यहां से थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, सभी में कंसेप्ट सेम यूज होना है। आई टॉक अबाउट से फर्स्ट, तो बहुत इजी है, सिर्फ एक मैं सेकंड आपको बता रहा हूं, रेस्ट यू कैन ट्राई इट आउट।
एक सिंपल लॉजिक लगाऊंगा, -1 एंड +1, बैलेंस हो गया ऊपर, -1 करा और +1 किया, कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, लास्ट टू में से माइनस जब कॉमन आएगा, इन ब्रैकेट ये लिखा जाएगा, सेपरेट देम, सेपरेट का मतलब x के साथ इसे भी अलग कर दीजिए और ये भी अलग हो जाएगा, लाइक दिस। और अब अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वन भी आपका एक डायरेक्ट वैसे वही फॉर्मूला ही गया था, इस वाले को देखो मैं क्या करूंगा फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए, e की पावर -x है, तो आप इसे -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। रीजन, फाइनली अगर अब आप ध्यान से देखें तो ये बन गया, फर्स्ट वन इज अ फॉर्मूला एज 1, और फिर ये -1 इंटू -1 प्लस हो गया, और फिर से ये भी एक फॉर्मूला बन गया एज 1, विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ दिस हैज गॉट द डायरेक्ट आंसर, पहचान बन गई हो तो दिस इज log 2, which formula I used, limit x to 0, a power x -1 upon x is equal to log a. So using this formula, there is a direct answer. क्वेश्चन को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो ये पहचान तो बननी शुरू हो जाती है कि फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, बट ये डायरेक्टली अब इस फॉर्म में नहीं है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हेयर, -1 चाहिए होता है मुझे फॉर्मूला के लिए, तो रिकॉल, पीछे भी एक क्वेश्चन ऐसा आया था, व्हाट आई विल डू, -1 एंड +1, combine first two and last two terms, separate them, लिमिट की प्रॉपर्टीज ये आपको पता ही होंगे कि इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो बेसिक फंडामेंटल था। फर्स्ट वन, अब अगर आप फॉर्मूला से देखें ध्यान से, फर्स्ट वन इज log 3 and second one is log 2. Finally, log a minus log b is log of a by b, which is your required answer. Doubt है तो you can ask.
तो बस उन्हीं फॉर्मूलाज की एक्सटेंशन में हो रहा है। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना रहेगा? e पावर x माइनस वन ओवर एक्स इज वन। तो अब इससे आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करना है। और जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, सोचिए यहां मुझे फॉर्मूला में माइनस वन चाहिए होता है, तो वही माइनस वन एंड प्लस वन, कंबाइन फर्स्ट टू एंड लास्ट टू, नेगेटिव कॉमन, एंड सेपरेट देम। एक्स इसके साथ भी आ गया और यहां भी। फर्स्ट वन फॉर्मूला में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसके लिए वैसे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट जो भी ई की पावर है वो बना देते हैं। तो थ्री से डिवाइड, यहां मैं यहां लिख देता हूं, थ्री से मल्टीप्लाई। फिर सेकेंड वन के लिए टू से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई, सो दैट यहां लिख दूंगा कि थ्री एक्स इज अप्रोचिंग टू जीरो, टू एक्स विल अप्रोच टू जीरो। तो दिस इज थ्री इंटू वन माइनस टू into 1, so that is your required answer. Please be sure the concept is clear to you, and in case any doubt, you can ask. एक्सटेंशन, अच्छा मुझे लगता है आपको ये फॉर्मूला बता दिया गया होगा। लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू वन। बिकॉज ये पता होगा तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। तो अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स इवैल्यूएट करवाना बता दिया है, तो दिस मस्ट हैव बीन डन। When I look at the problem carefully, this is e power 3 into e power x, first term। सिंपल लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है क्लास सेवेंथ का, और माइनस ई क्यूब को इसके साथ लिख देता हूं। फर्स्ट टू कंबाइन करी और नोट दैट इनमें से e पावर 3 कॉमन आ रहा है। और अब मैं इसे सेपरेट कर देता हूं, x को। और याद रखिए ई क्यूब इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट है वो लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। सो ये लिखा जाएगा, और माइनस में लिमिट एक्स टू जीरो साइन एक्स बाय एक्स। फाइनली बोथ आर द डायरेक्ट फॉर्मूलाज, और फाइनल आंसर ई क्यूब माइनस वन। And this is the last question which I will consider.
लॉग का है तो एक चीज जो माइंड में लानी है कि फॉर्मूला कुछ ये वाला बनेगा, log 1 plus x by x, and this is equal to 1. So this formula will be applicable over here. अब इसमें how I am going to change, let us understand. This is limit x to 5 लिखा है, और log x minus log 5, log a minus log b होता है log of a by b, तो ये हो जाएगा log of x by 5. बट फॉर्मूला बनाने के लिए हमें पता है मुझे log के साथ ये 1 चाहिए ही चाहिए, 1 प्लस, तो हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर दिया एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट इज अ सिंपल लॉजिक टू अंडरस्टैंड, बिकॉज फॉर्मूला में 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस तो मुझे एज इट इज लिखना ही है. बाकी बचे हुए टर्म का मैंने एलसीएम ले लिया, ये आ गया x माइनस 5/5, और यहां डिवीजन में x माइनस 5 ऑलरेडी है. नोट केयरफुली, जो यहां होता है वो यहां होना चाहिए. किस चीज की कमी है, डिवाइड बाय 5 की, तो डिवाइड बाय 5 कर दिया, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5 करना रहेगा, और फाइनली यू विल ऑब्जर्व कि जो ये सब कुछ आ रहा था, ये सब, इट विल देन रिड्यूस ओनली टू 1. लिमिट में क्या चेंज आएगा ये भी सोचो. इफ x इज अप्रोचिंग टू 5, x माइनस 5 विल अप्रोच टू 0, और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं 5 से, दिस विल स्टिल अप्रोच टू 0, तो ये आ गया 1, और बाहर बचा हुआ है 1/5, which is your finally required answer. चलिए, so you can leave the class. I am ending this class now. Finish.